أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आओ وعلیکم قرآن السلام سمجھے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک جزاک اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ نماز اور قرآن والا جو ہمارا QC1 کا لیول تھا ہم نے بڑی کامیابی سے الحمدللہ کمپلیٹ کیا، اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، یقیناً میں بھی، کہ ہم نے مل کر اس سفر کو کامیاب بنایا الحمدللہ۔ اور آج ہمارا کورس 2 ہے۔ آپ سب لوگ اس بات پر سب سے پہلے دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کیا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ جہاں سے ہم شروع ہم نے اپنا کیا تھا کورس 1، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو۔ آج ہم نے یہاں پر ایک نیت یہ بھی کرنی ہے کہ اب ہم نے انشاءاللہ ہم میں سے، جیسے میں نے کوشش کی، میں ٹیچر بنی، آپ لوگوں میں سے بھی جو الحمدللہ آسانی سے اپنا ٹائم مینج کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ابھی فی الحال جیسے مشکل ہوگا، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، کچھ ویسے خود بچیاں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیے جب آپ اس طرح سے ٹائم دے پائیں تو ضرور بالضرور اس کو شروع کر لیجئے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، اب ہم کورس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا سا پہلے بھی کیا نماز کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگوں نے نماز پہلے ادا کرنی ہے۔ یہ ہم ویڈیو وغیرہ سارا شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، یوٹیوب پر یہ ساری آپ کو ویڈیوز مل جایا کریں گی۔ آپ نے اپنا نماز کا ٹائم اس کو نہیں خراب کرنا، آپ نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں، جتنا سا آپ کا رہ جاتا ہے وہ آپ بعد میں دیکھ لیا کریں ریکارڈنگ میں سے۔ سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا کورس تھا آؤ قرآن اور نماز سمجھے، ہم نے کہا تھا آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، لیکن چونکہ ہم نے نماز کے ذریعے سیکھا تھا، کیوں سیکھا تھا نماز کے ذریعے کہ ہم دن میں الحمدللہ جو 5 نمازیں پڑھتے تو تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں، وہاں سے ہم نے 50% قرآنی الفاظ سیکھے۔ اب اس کا فائدہ یہ آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ جب ہم اپنا مصحف کھولتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ہمیں اس طرح سے یاد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ واحد کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یا میری، آپ کی، ہماری، آپ سب کی یہ چیزیں ہم سمجھنے لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسماء سیکھ لیے، ہم نے افعال سیکھے، افعال میں ہم نے دیکھا ماضی، مضارع، امر۔ اب یہ سیکھنا ہم نے ان چیزوں کو ہی آگے لے کے جانا، پیٹرن ہمارا وہی ہوگا۔ تھوڑا سا فرق یہ آئے گا کہ اب قرآن مجید ہے، ہم تھوڑے میچور بھی ہو گئے، لیول بھی ہمارا اب تھوڑا اپ گریڈ ہو گیا، تو اب ہماری تھوڑی سی محنت بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کو مشکل نہیں سمجھنا، کیونکہ قرآن آسان ہے، اللہ رب العزت نے اسے آسان بنایا، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشکل ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے ہم اس کو کور کر لیں گے۔ اب میں اگر آپ لوگوں میں سے پوچھوں، کوئکلی کوئی بتائے کہ ہم نے پچھلے کورس میں کیا کیا سیکھا قرآن پارٹ میں سے، کوئی بھی ایک سسٹر بتائیں، کیونکہ صرف سسٹرز کی کلاس ہے۔ جی جی سسٹر آج کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میم ہم نے پچھلے کورس میں پوری نماز سیکھی تھی اللہ۔ الحمدللہ اور چھ صورتیں سیکھی تھیں قرآن الحمدللہ پاک سے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور قرآن پارٹ میں ہم نے دعائیں، اذان وغیرہ یہ سارا ہم نے قرآن پارٹ میں سیکھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی آیات وغیرہ بھی، ایک دو حدیثیں بھی بالکل سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ بقرہ کا کچھ شروع کا جو تھوڑا سا کچھ آیات، چند آیات سیکھی ہم نے، آیت الکرسی دیکھی تھی، دعائے قنوت کو دیکھا تھا، اسی طرح سے رب اجعلنی، یہ چیزیں ہم نے سیکھی تھی الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ اب وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے،
क्योंकि जब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने पीछे वाले को जो हमने सीख लिया उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। मैं आपकी टीचर नौरीन अकरम, ज़्यादा लोग मेरा ख़्याल से मुझे जानते ही हैं। कुछ हमारे साथ दूसरे बैचेज़ में से शामिल हुई हैं सिस्टर्स, अभी सब आए नहीं हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 के राउंड अबाउट हैं सिस्टर्स जो हमारे साथ इंशाल्लाह कुछ कर लेंगी, इसे वीडियो से कवर कर लेंगी, कुछ इंशाल्लाह शामिल होते जाएँगे। ठीक है लोग, मैं नौरीन अकरम और मेरे साथ हफ्सा सुहेल, इनको भी आप जानते हैं कि मैं और हफ्सा हम इंशाल्लाह मिलकर आपको ये कोर्स पढ़ाएँगे। हमारा साथ देंगी सिस्टर मैमूना, सिस्टर अज़रा और सिस्टर विसाल आलम इंशाल्लाह। पैटर्न उसी तरह से होगा, हम 15 मिनट पहले अपनी जो गुज़िश्ता क्लास होगी उसकी रिवीजन किया करेंगे और आपने इस मर्तबा मतलब ये जो QC2 है यहाँ से आपने अपनी ये रूटीन इसको शामिल कर लें कि जो आपने क्लास में पढ़ना है वो अगली बार आपने 15 मिनट पहले जो रिवीजन क्लास होगी उसको ज़रूर आपने सुनना, समझना, उसमें आपने पार्ट लेना, आपने सुनाना है क्योंकि ये लेडीज़ की क्लास होती है इसमें आप शर्माया ना करें। तो ज़रूर बिल ज़रूर आया करें और आपसे जो पूछा जाए या आप देखिए आपके लिए बड़ा फ़ायदा होता है, मैं कहती हूँ कि रिवीजन क्लास में ये आपका टाइम है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़रूर बिल ज़रूर आएँ और सीखें क्योंकि ये जो हमारी सिस्टर्स हैं माशाल्लाह ये इसमें से सिर्फ़ सिस्टर अज़रा हैं उन वो ज़रा अभी क्योंकि 4 शायद कर रही हैं या 3 या 4 कर रही हैं। बाकी विसाल हैं, हफ्सा है, मैं, मैमूना हम सारे QC 6 में हैं तो अपनी-अपनी जगह पर सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स हैं। तो अपना बड़ा कीमती वक़्त ये मुझे देते हैं, आपको देते हैं, तो ज़रूर बिल ज़रूर आप क्लास में आएँगे और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें ज़रूर आप अपने सवालात किया करें और अगर उसमें भी आपको थोड़ा इश्यू लगता है कि थोड़ा शर्माते हैं आप, तो पर्सनली आप मुझे, हफ्सा को, मैमूना को, अज़रा के साथ जिससे भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। ये हमारा लेसन प्लान इसको आप गौर से देख लीजिए। ये इसको आप आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ना लें या इस तरह से ऐसी किसी मुश्किल में ना पड़ें, ये इसी तरह से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। हमारा कोर्स आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 मई 2023 को शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के हालात अच्छे रखे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह अपनी हिफाज़तों में रखे, आप लोगों की अल्लाह खैर करे तो इंशाअल्लाह 14 अगस्त तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ईद की छुट्टियाँ आ जाएँगी और देखेंगे कि किस तरह के हालात हुए। अगर मुहर्रम वगैरह में हमें रोकना पड़ा या एक आधी क्लास आगे पीछे करनी पड़ी, तो जैसे QC1 में आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया था मेरे साथ, इंशाअल्लाह इसमें भी आप लोगों के साथ मैं यही उम्मीद रखूँगी और बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह वो हमारी मदद फरमाए। हमारा एक होगा मिड क्विज़ और एक फाइनल क्विज़ होगा। ये उसी तरह से जैसे आपने QC1 में मिड क्विज़ किया और इसी तरह से एक फाइनल क्विज़ था, उसके बेस पे फिर आप लोग QC2 में आए। इसी तरह से जब QC2 कंप्लीट होगा, फिर आप 3, 4, 5, 6, 7 इंशाअल्लाह एक-एक लेवल आगे बढ़ते जाएँगे। क्विज़ेज़ सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि जैसे आपको चाहिए होती है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए उसको थोड़ा-सा एक टेस्ट या इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है, तो बस ये सिर्फ़ इसलिए है। वरना हमारा मकसद क्या है कि हम समझ जाएँ कुरान मजीद को और आसान तरीके से समझें। हमारी इसी तरह से रिवीजन की क्लास मतलब हम 8 लेसन जब कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद एक शुरू से लेके जहाँ तक हम पढ़ चुके, वो पूरी की पूरी कुरान पार्ट और इसी तरह से ग्रामर पार्ट की रिवीजन होगी। रिवीजन्स आप लोगों ने ज़रूर बिल ज़रूर जॉइन करनी, ये ना छोड़ा करें। फाइनल में भी ऐसे होगा क्विज़ से पहले अगर आप चाहेंगे कि एक दफ़ा मुकम्मल पूरी रिवीजन करवाई जाए, एक दफ़ा करवा दी जाएगी। अगर आप सैटिस्फाइड ना हो तो हम थोड़ा-सा टाइम और निकाल के एक मर्तबा फिर रिवीजन का सेशन रख लेंगे। वो जैसे हम देखेंगे इंशाअल्लाह अगर तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह पूरा आपका साथ देंगे और अल्लाह हम सबका साथ दे इंशाअल्लाह, आमीन। हम अपने मकासद देख लेते हैं, हमने QC1 में भी 6 मकासद देखे थे, यहाँ अब हमारे क्या मकासद हैं? हमने कुरान मजीद के 5 इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना है। कुरान मजीद में अब हम ये देखेंगे कि बिल्कुल पहले कोर्स की तरह आओ कुरान समझें आसान तरीके से, उसी तरह हमने जाना है 20 असबाक होंगे इंशाअल्लाह और हर सफ़ा पर हमने 4-4 असबाक देखने। ये भी आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि समझ में ना आने वाली बातें,
ये इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम करते जाएँगे आप लोग एक्सपर्ट होते जाएँगे इसमें। पार्ट 1 में हमने क्या करना, हमने कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात पढ़ने हैं और पार्ट बी ग्रामर में हमने जैसे क्यूसी 1 में अफ़आल सीखे थे, अब हम थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हमने देखे थे जिसे हम इंशाल्लाह इस तरह से बोला करेंगे कि ये सही या इस तरह से कि मुकम्मल सुलासी मुजर्रद के अफ़आल हैं। अब हम सीखेंगे कमज़ोर। अब कमज़ोर किस तरह से इंशाल्लाह जैसे-जैसे अब हम सीखते जाएँगे हमें पता चलता जाएगा कि इन्हें इंजर्ड या फिर इस तरह से कमज़ोर अफ़आल क्यों कहा जाता है, या हम इनको स्पेशल अफ़आल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारा पहला मकसद है वो ये है कि कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात पढ़ना, और दूसरी जो बात वो क्या है कि कुरान मजीद की हर सतर में आने वाले या उसमें मौजूद 7 अल्फ़ाज़ को जान लेना। इंशाअल्लाह ये हमारा कोर्स जब कंप्लीट होगा, आप कुरान मजीद खोलेंगे, हर लाइन में आने वाले 7 अल्फ़ाज़ को आप अच्छे से उनके माना जानते होंगे। नमाज के मुतालिक पहले कोर्स में हमने 50% अल्फाज सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक मौजज़ा और भी है कि सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए सूरत में हर सतर में मौजूद 9 अल्फाज, हमने कहा था कि एक लाइन में कितने अल्फाज होंगे, तकरीबन 9। 9 में से 6 अल्फाज ऐसे होंगे जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इस तरह से कुरान मजीद को खोल कर देख भी सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर कौन-सा नया लफ्ज़ नज़र आ रहा है, हुदन। तो इसको भी अगर हम देखें, हिदायत से थोड़ा-सा रिलेट कर लें, मुफ़्लिहून को हम फलाह से, युमिनून को ईमान से, और इसी तरह से कुलूब हम उर्दू में जैसे बोलते हैं क़ल्ब, कुलूब। नया हमें क्या नज़र आ रहा है, अब्सार को भी हम बसीरत इससे हम समझ सकते हैं। ग़िशावतुन एक हमें नया यहाँ पर वर्ड नज़र आ रहा है। या अब आप देखिएगा यक़ूलु क़ौल, इससे भी पता चल रहा है कि कुछ कहने की बात हो रही है। अब नया लफ्ज़ आपको कहाँ मिला, युख़ादिऊना, यख़दाऊना अनफुसहुम को भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, नफ्स की बात हो रही है। अब आप लास्ट लाइन में देखिए, यहाँ पर कोई 1-2 नए ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, यशऊरून हो गया, मारादुन को भी हम जानते हैं, और ये जो ज़मीरें हैं हु, हुम, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती हैं। हमें जो उर्दू बोलने वाले हैं, इनको एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अरबी के और उर्दू के अल्फ़ाज़, बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ एक जैसे हैं कि उनके तर्जुमे भी एक जैसे होते हैं। इस वज़ह से हमें ये सीखना भी आसान है, याद करना भी आसान है। अच्छा जी, ये वाले वो तमाम के तमाम नए अल्फ़ाज़ हैं, जो हमने सीखने हैं। यानी कि हमारे पास 5 सफ़हात में सिर्फ़ 43 ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, जो हमारे लिए फ़ेमिलियर होंगे, बहुत नए नहीं होंगे। हम उनको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं रिलेट करेंगे ना, तो हम इंशाल्लाह वो भी जानते होंगे। इसी तरह से अब हमने देखना है कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद हर लाइन में औसतन सिर्फ़ 2 नए अल्फ़ाज़ बाकी होंगे। यानी कि अगर हम कहें कि 100% में से 80% हमें आते होंगे अल्फ़ाज़। अब आप देखिए, जब हम कोर्स 1 कर लेंगे तो ऊपर की जो पूरी लाइन में देखिए, इसमें से सिर्फ़ ताबिया ये एक नया लफ्ज़ हमें नज़र आएगा। इसके बाद यहज़नूना, सिर्फ़ इसी तरह से 1 कहीं 2 कहीं 3, इस तरह से बहुत थोड़े-थोड़े से अल्फ़ाज़ रह जाएँगे, जो हमने फिर क्यूसी 3 में सीखने हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते-बढ़ते इंशाअल्लाह हम इस काबिल होंगे कि हम कुरान मजीद को खुद देखकर खुद तर्जुमा कर सकें, समझ सकें इंशाअल्लाह। इसके बाद है इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फ़ाज़ मानी सीखना। इशारे और फ़िक्रे, इनको भी अभी हम समझते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी हैं, और इंशाअल्लाह हम इसको ऐसे करेंगे कि शुरू से ही हम अपने पास पॉइंटर और ये जो हाइलाइटर, ये हम अपने पास रखेंगे, ताकि हम शुरू से जान सकें कि हमने इनको मैच कैसे करना है। ठीक हो गया? इसके बारे में हम थोड़ी-सी डिस्कशन या ग्रुप में या वैसे बात क्लास में कर लिया करेंगे, कि हम उनको जो हमारे नाम होंगे पॉइंटर्स के, वो भी हम आगे देखते भी हैं। उनको हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि हमें पता हो कि इसके बारे में ये जो आया मुबारका लिखी हुई है, इसका इस इशारे से क्या ताल्लुक है। ये हम लोगों ने क्यूसी 4 में समझने की इस चीज़ को सीखा था। तो अब कोशिश है कि जो हमने सीखा है, वो आप लोगों तक इस तरह से पहुँचा दिया जाए कि जो मेहनत चले हम कर चुके, जो हमने करनी थी हमने की, आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मज़ीद आसानी बना दी जाए।
कुरान फहमी के दौरान आने वाले हमारे 2 चैलेंज क्या होंगे? अल्फाज के मानी, अब इनको हमने कैसे याद रखना? इशारात और फ़िक्रों की मदद से। और ग्रामर कैसे? वो जो हम करते थे टीपीआई, तो टीपीआई करते थे ना हम। और अरबी बोलचाल जिसमें हम आपस में डायलॉग वगैरह सवाल-जवाब करते थे। अब हम इशारात हम देखते हैं कि इशारा जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका माना क्या है? क्या मतलब है उसका? कुरान मजीद में 30 पारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। और आम तौर पर कुरान के जो नुस्खे प्रिंट होते हैं, इनके हर पारा में तकरीबन 20 सफ़ात होते हैं। अब आप देखिएगा, आप समझ लें कि ये हमारा एक पूरा पहला पारा है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? मेरी हो स्क्रीन रही है। डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी मैम। ठीक, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यस। हाँ जी। अब नहीं आप नहीं देखिए, सही। हाँ जी, अब देखिएगा, ये जो हमें पहले 5 सफ़ात नज़र आ रहे हैं, सूरह फ़ातिहा है इसमें, उसके बाद सूरह बक़रा है। सूरह बक़रा तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारे तक चलती रहती है ना। अब हमने करना क्या? हमने शुरू के 5 पेजेज़ ये हमने पढ़ने हैं क्यूसी 2 में, ये हम पढ़ेंगे क्यूसी 3 में, ये क्यूसी 4 और क्यूसी 5 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम समझते हैं, अब आप देखिएगा कि हर पारा को, सारे पारे इसी तरह से डिवाइड किए गए। हर पारा को 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया। ये 4-4 बना दिए गए, ठीक है? 5, 5, 5 इसको 4 ऐसे बना दिया गया। उसके बाद फिर मज़ीद हर पारा को इस तरह से आप देखेंगे कि ए, बी, सी, डी, ठीक हो गया? इस तरह से डिवाइड किया गया 4 हिस्सों में। जैसे हम कहते हैं कि पाव, 1 पाव, इस तरह से 4-4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया। इसके बारे में जब हम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे ना, तो ये मज़ीद समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। यहाँ इस कोर्स में हम पहले पाव पारे के 5 सफ़हात पढ़ेंगे। अब इसको हम कैसे देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको समझ भी लेंगे। हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी? हम अपने दाएँ हाथ का इस्तेमाल करेंगे 5 उँगली इस तरह से। अब ये जो मेरा इस तरह से बनता नहीं है, ठीक है? आप लोग जिसका ऐसे बन जाता है बना लीजिए, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ऐसे बनता नहीं। ठीक हो गया? ये ऐसे हमारे 5 सफ़ात होंगे। ठीक हो गया? अब आप इसको देख लीजिए, ऐसे हमने अपना दायाँ हाथ इस्तेमाल करना है। ये हमारा पहला पेज है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये हमारे 5 पेजेज़ हो जाएँगे। अब हर सफ़ा को 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया। ठीक हो गया जी? अब ये जो पहला हमारा पेज है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है? अब हर हिस्सा एक इशारा के तौर पर पेश किया गया। इशारा के एक से ज़ायद उन्वान इस तरह से हो सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें जो बातें बताई गई हैं, इशारा का जो नाम है इसमें ज़रा मुख्तसर या वो उन चीज़ों का, हर चीज़ का ज़िक्र ना किया गया हो, लेकिन जो सबसे अहम बात है उसके बारे में बात कर दी गई हो। अब हम जो इस तरह से सब हमने कर लिए, ये 5 हमने बना लिए पेज। आज हमारा ये जो पहला पेज है, ये शुरू होगा। अब पहला पेज है, इसके इशारे हमने कैसे याद रखने हैं? हम इस तरह से इसके ऊपर लिखेंगे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। अब इनके हम मुख्तसर इशारे कैसे सीखेंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ कि कोई आप में से इसको एक मरतबा रिपीट कर लें। एक दफा पूरे पूरे नाम पढ़ें और उसके बाद मुख्तसर इशारों के नाम पढ़िएगा। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? बाजी मैं पढ़ूं? मैं जी, पढ़ूं? बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों पढ़िएगा बारी-बारी। पहले कौन पढ़े? मैं पढ़ लूं पहले? पढ़ लीजिए, कमर पढ़ नहीं। जी आप सिस्टर जी आप पढ़िए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तारीफ, मुख्तसर इशारे बताएं। जी जी, बताइएगा। तारीफ, तारीफ, दुआ, तारीफ, हिदायत, दुआ, हिदायत, सफर। सिफात। जी, अब जो दूसरी सिस्टर पढ़ रही थी, आप भी इसके मुख्तसर इशारे जरा थोड़ा सा इस तरह से रिपीट कर, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अभी हमने इसको याद कर लेना है। तारीफ, तारीफ, दुआ, दुआ, हिदायत, हिदायत, सिफात। सिफात। एक मरतबा फिर से। तारीफ, तारीफ, दुआ, दुआ, हिदायत, हिदायत, सिफात। हिदायत, सिफात। अब
अभी ये हमारे लिए नई चीज है, जो माशाल्लाह से रिपीट करें उनके लिए तो ये पता चल गया उनको कि ये कैसे है। आज हमारे लिए ये नई बात है, लेकिन आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना फायदा होता है कि आप कुरान मजीद जब पढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे आयत आगे बढ़ रही होती हैं, आप उसको इशारे के साथ रिलेट भी कर लेते हैं और आपको समझ में भी आ जाता है कि जैसे अभी अल्लाह की तारीफ है, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात की गई है, दुआ की बात कहाँ की गई है। फिर आगे हम देखेंगे कि मुत्तकीन के बारे में बात की गई है, उनकी हिदायत के बारे में, फिर उनकी सिफात के बारे में। और ये इतना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये चीजें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। अभी हम इसको देखेंगे, जैसे हम इशारों के नाम देखेंगे, हम उनको रिलेट करना भी खुद ही शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने हाइलाइटर जरूर ले लेना, एक एक हाइलाइटर सब ले लें। इसको हम शुरू से इस तरह से देखेंगे कि हमें इशारों के नाम और उनकी आयात उनको रटना ना पड़े, वो हमें खुद ब खुद अंदाजा हो जाए कि ये अगर अल्लाह की तारीफ लिखा हुआ है तो ये कहाँ से शुरू होकर आयात कहाँ तक कंप्लीट होंगी। और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। आप इस तरह से इसको देख लीजिए कि ये हमारा दायां हाथ है और यहाँ पर हमने इस तरह से, मैं इसको इस तरह से किया करती थी, कभी कभी अपने हाथ पे लिख भी लेती थी ताकि ये याद रहे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तो जिसको जो जैसे आसान लगता है आप ऐसे अपना हाथ एक पेज के ऊपर बना के उस तरह से भी लिख के याद रख सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आयात के साथ रिलेट करें और उसको उस तरह से याद कर लीजिए। अच्छा जी, अब इसमें ये देखिए कि शुरू जो हमारा होता है ना कुरान मजीद, वो सिर्फ सूरह फातिहा एक तरफ लिखी होती है ना और दूसरी तरफ चंद आयत लिखी होती हैं। अब ये इसको इस तरह से बता दिया गया कि यह जैसे अंगूठा ये नाक की बाईं तरफ रख के तो बता दिया गया, लेकिन हमने क्या करना, हम अपने दाएं हाथ से शुरू करेंगे। यहाँ पर एक दफा जरा सांस लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अपने आप को जरा फ्रेश फ्रेश कीजिए। इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हैं ताकि हमें बोझ बोझ सा ना लगे। इस तरह से हम सारे के सारे इशारे, ये मुख्तसर इशारे, और ये इंशाल्लाह ऐसे याद हो जाएंगे कि आप इनके पूरे पूरे मुकम्मल जो छोटे छोटे लाइंस या जुमले हैं उनको भी याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इनका फायदा क्या है, इससे होता क्या है, अगर हम ये इशारे ना करें तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात हम सीख लेते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। ना करने से नुकसान कोई नहीं होगा, मैं पहले मेरे मुंह में ही आ रहा था, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये कि फवाइद बहुत हैं। इशारात की मदद से मजमून का पता चलता है जिसमें नए अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं। इशारात क्या करते हैं, ये एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं जिनकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा जहन में लाना आसान हो जाता है। गोया जैसे जंजीर से एक माना को पकड़ के और दूसरा फिर अगला, जैसे हमने सीखा था इंशाअल्लाह, इनको हम खाली नहीं याद रख सकते, या हम शाह का मतलब खाली अगर नहीं याद रख सकते, जब हम कहेंगे इंशाअल्लाह ये पूरा एक फ्रेज बन गया, एक जुमला बन गया, हमें याद हो गया कि इनका माना क्या है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन से हमने इन्ना जब कहा, इन और इन्ना का फर्क करने के लिए हम दोनों फ्रेज बोल के देख सकते हैं। इनकी मदद से हम पूरे सफ़े के मौजूद जितने भी इसमें मज़ामीन है उनको अपने ज़हन में ला सकते हैं। और कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। ये जैसे-जैसे इंशाल्लाह हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। जहाँ-जहाँ पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया, हमें याद करवाया गया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, तो ज़रूर कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जैसे हमने QC1 में भी देखा था कि इनका माना इंशाअल्लाह से याद हो जाएगा, इसी तरह से हमने बहुत छोटी-छोटी लिल्लाही हमने सीखा, उसमें हमने ली का माना सीख लिया, इसी तरह से इंदा कमरी आला इंदकुम, इस तरह से जो हमने छोटे-छोटे फ्रेज सीखे थे उनसे माना हमें याद हो गए थे। इससे पता चलता है कि लोग जवाब जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन इनफरादी लफ्ज़ की शक्ल में नहीं बल्कि फ़िक्रे की शक्ल में। अल्फाज के मानी को सीखने का तरीका भी यही है कि फ़िक्रों को याद कर लिया जाए। अब एक-एक लफ्ज़ को याद करेंगे ना तो कुछ ना कुछ भूल जाएँगे। फ़िक्रा याद होगा, फ़िक्रा ज़हन में लाएँ, वो उसी तरह से हमें पूरा का पूरा माना याद आता जाएगा। फ़िक्रों के फ़ायदे, यानी कि ये जो वो ज़ंजीर देते हैं जिससे नए अल्फाज के मानी को पकड़ में रखा जा सकता है। आयात के मज़ामीन को याद रखने में मददगार साबित होते हैं। अल्फाज के मुकाबले में फ़िक्रे बात को बेहतर समझा देते हैं। ठीक हो गया जी? सिर्फ़ अल्फाज के मानी याद करने के मुकाबले में फ़िक्रों और उनके मानी को याद करना ज़्यादा मुअस्सर भी है, मुफ़ीद भी और दिलचस्प और काबिल अमल तरीका है। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा
जैसे आप कहें इन्ना अल्लाह मा स्वाबिरीन, हमने याद तो सिर्फ इन्ना करना था, लेकिन हम जैसे कि पूरी हमने एक फ्रेज, एक आयत इस तरह से सीख ली कि इन्ना अल्लाह मा स्वाबिरीन, हम एक एक चीज के अलग अलग मा का माना सीखना था, तो हमने इसके साथ स्वाबिरीन का भी सीख लिया। और जब हम जहन में इस चीज को लाते हैं, इसका पूरे का पूरा तर्जुमा भी हमें आ जाता है, तो ये बहुत मददगार होते हैं फिक्रे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज जो हमने करनी है वो ये है कि जब आप किसी फिक्रा को पढ़ें तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें, R5S10 लाउड। इसका क्या मतलब है? रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल अपने आप पर इसको कोई बोझ ना समझे। आपके 5 सेंसेस यानी कि हवासे खमसा को इस्तेमाल कीजिए। वो क्या है? जैसे हम अपनी क्लासेस में TPI के लिए भी कहते थे ना, अब ये है सुनना, देखना, सूखना, चखना, छूना, महसूस करना। ये हमने कहाँ सीखा था? जब हमने वो फील वाली एक सूरह फील को हमने या हमने हाथी की पहचान की थी, हमने QC1 के एक सबक में सीखा था कि हम इन चीजों को कैसे उनके माना अपने जहन में ला सकते हैं, कि आवाज सुन के, देख के, महसूस करके, स्मेल, तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं इनको हम आसानी से समझ लेते हैं। अफाल की हरकतों और अस्मा की शक्लों का तस्वर कीजिए। अफाल की हरकतें कौन सी है? जैसे हमने सीखा था माजी है, ये माजी है, ये मुदारे है, ये अमर है, हमें समझ में आ जाता है कि ये माजी है, तो इसमें उसका तर्जुमा कैसे हुआ था? मुदारे में दो चीजें आ गई थी, इसमें एक हाल था, मुस्तकबिल था। और अस्मा, अस्मा को हम सिर्फ अरबी में नहीं, हर जुबान में इसको हम इस तरह से याद कर लेते हैं कि जो नाम हम ले उसकी शक्ल हमारे जहन में आ जाए। कम अज कम 10 सेकंड इस काम को कीजिए और लाउड यानी कि बुलंद आवाज से कहिए। अब आपने इस फॉर्मूला को याद भी रखना है, R5S10 लाउड। कोई इसको जरा बोले जी सिस्टर्स। R5S10 लाउड। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आसिया ने भी हैंड रेज किया, जी आप भी बोलिएगा। R5S10 लाउड। 10 लाउड। और ये चीज भी याद रख लेनी कि इसका मना क्या है, रिलैक्स, हवा से खमसा के 5 सेंसेस, और कम से कम 10 मिनट इस काम को करना है। कोई भी आप आयत देखें, कोई भी आप अल्फाज के माना, उसको इसी तरह से बिल्कुल रिलैक्स कर लें खुद को, फिर अपने जहन में लाएं कि आप इसके बारे में क्या क्या चीज अपने जहन में महफूज कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। और ऊंचा पढ़ने से ये फायदा हो जाता है कि जब अपने कानों को आवाज आती है तो चीज जल्दी याद होती है। जी सिस्टर ने हैंड रेज किया था, सिस्टर निघत थी शायद। जी सिस्टर, जहां कहीं आपको किसी भी बात की समझ ना आए, आप मुझे रोकिए, इंशाल्लाह हम बात क्लियर करके आगे चलते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इंशाल्लाह इशारा तो फिक्रों से हम नए अल्फाज के मानी को सीखने के अमल को आसान बनाएंगे। चौथा हमारा मकसद क्या है कि कुरान को जिंदगी में लाना है, यानी कि यहाँ पर पढ़ना और उसके बाद उसको सिर्फ अपने वर्कबुक में कर लेना या अपने होमवर्क करना, क्विज़ेस करना, उसके बाद भूल जाना, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि जिंदगी में इंशाल्लाह कुरान मजीद को लाना है। अच्छा जी सिस्टर्स, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी, आपकी आवाज आ रही है। कम आ रही है। हाँ जी, मेरी तरफ ना थोड़ा सा नेट का इशू हो जाता है, मुझे वो बार बार इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि एरर है, जी, तो इसलिए सिस्टर। हाँ मुझे जरा बार बार ये आपको जरा आज थोड़ी सी तकलीफ मैं दे रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा ये आज नेट का इशू है। अच्छा जी, आयात को पढ़ने के बाद उसका तर्जमा मुख्तसर शरह के बाद हम इनका असबाक निकालेंगे, यानी कि हमने तर्जमा भी देखना है और इसकी मुख्तसर सी शरह भी देखेंगे। ये तफसीर का कोर्स नहीं है, इसलिए हम ज्यादा लंबी चौड़ी तफसीर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने थोड़े टाइम में आसानी से इंशाल्लाह इसको ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। और जब हम असबाब की रोशनी में इन चीजों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा अगला कदम, हमारा प्लान होना क्या चाहिए, हमारी दुआ क्या होनी चाहिए। ये इंशाल्लाह उसी तरह से होगा जैसे हम QC1 में सीखते हैं, उसी तरह से हम इंशाल्लाह QC2, 3, 4, 5 इस तरह चलते हैं। दुआ, तबलीग, एहतिसाब, प्लान, जैसे दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग कैसे करना है कि जब हमने एक आयत मुबारका को पढ़ लिया, उसको फिर गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ हमने उसके ऊपर मुताला करना, उस पर गौर व फिक्र करनी है कि हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, अपना एहतिसाब करना है, प्लान बनाना है कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। एहतिसाब तो ये है ना कि जो हमने कर लिया अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, जहाँ हमसे कोई गलतियां होती हैं अल्लाह ताला अपना
रहम फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए कि वो गफ़ूर रहीम है। प्लान बनाना कि आइंदा हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और तबलीग के बारे में हम QC1 से बात करते आए कि सिर्फ अपना सीख लेना काफ़ी नहीं है, इंशाअल्लाह अपना ये पैगाम यानी कि कुरान मजीद का पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाना है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने क्या सीखना है कि ये 5वां जो हमारा मकसद क्या होगा, कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़आल को सीखना है। ये कमज़ोर अफ़आल क्या हैं? ये इंशाअल्लाह अभी हम ग्रामर पार्ट में इसको भी देखते हैं। इसके बाद जो हमें बेहतरीन जो एक चीज़ मिलती है, जो बोनस मिलता है, जो हमें फ़ायदा होता है, वो क्या होता है कि हमें 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले समझ में आ जाते हैं। हम जुमले खुद बनाने लग जाते हैं। अब छोटे-छोटे फ़िक्रे जैसे हम सुनते तो पहले भी थे, लेकिन ये कि हमें उनके माना अच्छी तरह से नहीं आते थे, हमें पता नहीं था। लेकिन हमने QC1 में बहुत सारे सवाल-जवाब अपने शुरू के जो हम कहते हैं कि कब्र के सवाल हैं, वही हमने सीख लिए थे। मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम, जो इस तरह से हमने छोटी-छोटी चीज़ें सीखी थी। तो ये हमारे अरबी के बोलचाल के जुमले, ये जैसे हमने QC1 में सीखे थे, वहाँ हमने 100 जुमले सीखे थे। अब हमने क्या करना है, हम 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले बनाना सीखेंगे। सारे जुमले कुरानी माहौल से जुड़े होंगे, यानी कि जितने भी हम जुमले, फ़िक्रे जो भी सीखेंगे, सब के सब कुरान से रिलेट होंगे। जुमलों की प्रैक्टिस से फ़ेल के मुख्तलिफ सीखे अच्छी तरह ज़हन-नशीन हो जाएँगे। और ये भी हमने इसमें सीखना है, ये मतलब ये जो आसान तरीके से हमने डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम वाला कोर्स चला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले अफ़आल, अस्मा, उन चीज़ों को सीखा और सिखाया जाता है। टीचर और तलबा के दरमियान और आपस में प्रैक्टिस के ज़रिए क्लास का माहौल एक्टिव रहेगा। कैसे? कि आप मुझे इस तरह से लाइव भी क्वेश्चन किया करें, मैं इंशाल्लाह आंसर दूँगी। जो मुझे आंसर नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह मैं अपने टीचर से पूछूँगी। और अगर आप थोड़ा-सा एडवांस सवाल कर लेंगे, हमने पहले ही बात की थी, तो हम इसको कहेंगे कि ये अभी आने वाले जो हमारे QCs हैं उनमें हम सीख लेंगे। और जो सवाल वो मैं कहूँगी मेरे सर के ऊपर से गुज़र गया, ठीक है? जिसका जवाब देना मुझे ज़रूरी नहीं लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जवाबात से इत्तेफ़ाक भी करें। ग्रामर सीखने में ये होगा कि दिलचस्पी भी बनी रहेगी और आपने इसके लिए अपने डिस्कशन ग्रुप को छोड़ना नहीं है। ठीक हो गया जी? इंशाल्लाह एक और ग्रुप बनाया जाएगा, एक एडमिन ग्रुप होगा, डिस्कशन ग्रुप होगा और ज़रूर एक्टिव हुआ करें। अपने साथी चुनिए, साथी बनाइए। जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा हर जगह बात करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हफ्सा के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी और हम ये करते हैं, हम जो पढ़ते हैं एक-दूसरे से ज़रूर डिस्कस करते हैं और इससे ये फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि एक अकेला बंदा हो सकता है कि वो उस तरह से ना सोचे समझे, 2 लोगों की बात, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप दूसरों से सुन के भी सीख जाते हैं ना, तो अपने लिए साथी चुनिए, कुरान के साथी चुनिए। अब हम पहले सफ़े को ले लेते हैं, ठीक हो गया जी? आम तौर पर कुरान के नुस्ख़ों में सूरह फ़ातिहा दिखेगा, इसी तरह से होती है ना पहले सफ़ा पर, और उसके बाद फिर अगले सफ़ा से सूरह बक़रा शुरू की जाती है। इस तरह से ये कि खूबसूरती भी आती है, ये इस तरह से हम जब अपना मुसहफ़ देखते हैं। अब ये क्या करना है, हमने इसको ये नहीं कहना, ये पहला पेज बन गया, ये दूसरा पेज बन गया, ये पहला पेज ही है, ठीक हो गया? क्योंकि ये इसके हिस्से कर दिए जाएँगे ना। अच्छा जी, पहले पारे में 20 सफ़ात की तरतीब बरकरार रखने के लिए सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रा, इसको एक ही सफ़ा पर इस तरह से लिखा गया, ताकि पता चले कि ये एक ही पारे के इब्तिदाई 2 जुज़ हैं। पहले में क्या होगा, इशारा ये जो हम देखेंगे, ये इसमें ये कि यहाँ तक हम कि 4 की 4 चीज़ों को सीख लेंगे, ताकि जो 4 इशारे हम कह रहे हैं, कौन-कौन से हैं बताइएगा? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, और मुख्तसर इशारे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जी, माशाअल्लाह। अब ये जो 2 सिस्टर ने हैंड रेज़ किया, आप दोनों भी इकट्ठे पढ़ लीजिए। मुख्तसर इशारे पढ़ लीजिए। तारीफ, दुआ, मुत्तकियों की हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। मुत्तकियों की सिफात, ठीक हो गया जी। हम इसको ये जो रेड में लिखे हुए ना, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, इसको आसानी से याद कर लेते हैं, ठीक हो गया जी? ये हम देख चुके हैं। अभी चूँकि आज हमारी पहली क्लास है, इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ते जाएँगे। आज तो कुछ थोड़ा बहुत हमने मकासद वगैरह देखने थे ना, तो आज हम सिर्फ़ तअव्वुज़ को सीखेंगे, हम पहले भी सीख चुके हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया हुआ है। लेकिन ये कि थोड़ा-सा फ्लैशबैक पे आते हैं।
आऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी, जब हमने शुरू में आऊज़ु बिल्लाह यानी कि ताउज़ पढ़ा था तो हमें ये नहीं पता था कि ये जो आऊज़ है ये हम अपनी तरफ वाला इशारा कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए हमने जैसे जैसे फेल मुदारे सीखा हमें पता चल गया कि ये तो जैसे हमने कहा था यफ़अलु यफ़अलुना तफ़अलु अफ़अलु, ये तो कुछ उससे मिलता जुलता है। अब ये कि अफ़अलु कि जैसा लग तो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा बोलने में चेंज है, तो यही चीज हम इंशाअल्लाह अपने QC2 में सीखेंगे कि ये जो थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आ गई है तो ये फेल मुदारे, तो इसका पूरा पूरा वजन उसके जैसा क्यों नहीं हो रहा अफ़अलु की तरह। तो इंशाअल्लाह ये हम QC2 में बड़े बेहतरीन अंदाज से सीख लेंगे। कुरान मजीद पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़िए। ये हमने क्या सीखी थी पहली आदत कि शैतान से अपनी हिफाजत करनी है, सेफ्टी फर्स्ट। कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, उसका फायदा क्या होगा, कुरान में गौर करने का मौका मिलेगा और कुरान से इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आऊज़ु बिल्लाह लिखी हुई है यहाँ पर कितने अस्मा नजर आ रहे हैं? जी दो। जी जी, कौन कौन से? अश-शैतान अर्रजीम। अच्छा जी, और अल्लाह के बारे में क्या कहना है आपका? ये अल्लाह भी इसमें जलाला है, हाँ अल्लाह जी, ताला भी हाँ इसमें जी। जलाला है। यानी कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हम अलिफ लाम से सीखते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम तन्वीन से सीखते हैं, लेकिन कुछ जाती नाम भी होते हैं ना, कि जैसे अल्लाह ताला का जाती नाम है अल्लाह, तो हमें पता चल जाता है कि ये भी नाम है। और हरूफ कौन कौन से हैं यहाँ पर? मिन, और बी बी, अल्हम्दुलिल्लाह। बी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये QC1 का ये फायदा हम साथ साथ बताएंगे, जो हमने सीखा है उसको हम साथ साथ रिपीट करते जाएंगे ताकि हमने जो सीख लिया उसको भूल ना जाए। ठीक हो गया जी सिस्टर्स? अच्छा जी, आम कामों से हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है, लेकिन ये कि हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना है ताकि इसमें बरकत हासिल हो, लेकिन कुरान शुरू करने से पहले खास तौर पर आऊज़ु बिल्लाह यानी कि शैतान से अपनी हिफाजत करनी है। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है और शैतान की कोशिश क्या होती है, वो हमें इस बरकत से, इस रहमत से दूर रखे। क्यों? क्योंकि वो खुद रजीम है, मरदूद है, रहमत से दूर है, धुतकारा हुआ है। तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो हमें भी अल्लाह की रहमत से दूर कर दे। तो इसीलिए हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। हमने कहा था हम शैतान को मार नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक बड़ी बेहतरीन सी चीज बता दी अपनी इस हिफाजत के लिए। वो क्या है? वो है तअव्वुज़, यानी कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। अपनी जिंदगी में भी इसके पैगाम पर अमल कीजिए। ये इससे क्या होगा, हमारी आदत नंबर 1 पक्की हो जाएगी कि जब भी कोई वसवसा आए तो तअव्वुज़ पढ़िए, और वसवसे आ जाते हैं, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, गलतियों खताओं के पुतले। तो ये कि हमें वसवसे भी आ जाते हैं। हमने सूरह नास में सीखा था कि शैतान क्या करता है, खन्नास यानी कि छुप छुप के हमला करता है। तो उसके लिए क्या करना, हमने मुआवज़तैन भी सीखे। इसी तरह से सबसे पहली जो हमारी आदत थी, ये जरूर बिल जरूर ख्याल रखना है, महसूस कीजिए कि आप शैतान के मुसलसल हमलों में घिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की जरूरत है। इंशाल्लाह इसका जो बाकी हिस्सा है हम बुध वाले दिन यानी कि 5:15 बजे बुध को जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। कुछ ये कि आज आप लोगों का ये थोड़ा सा नया भी है काम, तो आप लोग इसमें थोड़े से रिलैक्स भी हो जाएं कि ये आसान है। इंशाल्लाह हम बाकी तो कुरान मजीद वाला, कुरान पाठ वाला हिस्सा वो हम पढ़ेंगे वेडनेसडे को। ये सारे वही काम है। इसमें क्या है कि 2 तिलावत के हैं जो मैं कहती हूँ कि 5-5 मिनट से आप इसको 10-10 मिनट करके बढ़ाते जाएं। फिर 2 थे किताब पढ़ने के, उसी तरह से बुक से पढ़ें आप, जो आपकी जो पॉकेट बुक नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम आपके साथ एक बड़ी अच्छी गाइड शेयर कर देंगे। इसी तरह से लफ्ज़ी तर्जुमा सुने और इसके जो कवायद हैं वो MP3 पर। अब इसमें ये हो जाएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान मजीद की ऐप्स हमारे पास हैं, उसमें से हम सीखे समझेंगे। अपने साथियों से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें जरूर तिलावत कीजिए। यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए।
हम इसको 1 आधे मिनट में शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। मैं इसके लिए लेनी होंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बुक्स मंगवाई थी, तो अभी तो हमें बुक्स आई भी नहीं है। ये देखिए, मैं आज इंशाल्लाह शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ, अकाउंट शेयर करती हूँ और टीचर का नाम शेयर कर देती हूँ। ये हमारी बुक्स होगी, ठीक है। जैसे हमने एक टेक्स्ट बुक उसमें रखी थी QC1 में, ये सेम उसी तरह से हमारी बुक है, इसको आप देख भी लीजिए, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह ये मजीद के 5 जो पेजेस हैं वो हम पढ़ने हैं, और उसी तरह से वर्कबुक, ये देखिए, ठीक हो गया जी, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिस्टर ये बुक्स हमें कब तक मिल जाएंगी? मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन में तो कहा था कि मुझे आप बुक्स लोगों के चाहिए। साथ अकाउंट शेयर कर देती हूँ, तो as soon as possible आप जिस तरह से अपने कॉस्टली हदिया वगैरह जमा करवाएं तो इंशाल्लाह ये आपको जल्दी मिल जाती है, 2 या 3 दिन में मिल जाती है। लेकिन ये कि PDF हम आज ही शेयर कर देंगे, PDF और अकाउंट जो है दोनों चीजें आज शेयर कर देते हैं। जो हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हैं वो आज के आज ही ऑर्डर कर दें। नंबर आज शेयर कर दें प्लीज। हाँ जी, आज ही इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, PDF भी शेयर कर देते हैं और आपके ये जो इंशाल्लाह अकाउंट का वो भी लिंक भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने एक काम और करना है कि इसको पेंडिंग ना करें, जो आपकी वर्कबुक है इसको साथ साथ करें। उसका फायदा ये हो जाता है, जब आपका होमवर्क आता है ना, आप होमवर्क करने से पहले अपनी वर्कबुक हल करें, आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें से मिल जाते हैं। आपके साथ जो स्लाइड्स शेयर की जाती हैं उनका बहुत मुताला किया करें, उसमें से आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि साथ साथ करते जाएं, क्योंकि हमें फाइनल के करीब करीब चाहिए होती है। और एक हमने लास्ट टाइम ऐसा भी किया था कि आधी हमने जैसे मिड क्विज तक मंगवा ली थी, उससे आप लोगों को ये फायदा हो जाता है कि जरा जल्दी जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाता है, पेंडिंग नहीं होता है। जी 2 सिस्टर के हैंड रेज हैं। जी सिस्टर रेहाना कौसर और मिसेस ने कमर ने। जी कोई क्वेश्चन है तो कर जी। दीजिए, हम इसको क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जी अस्सलाम सिस्टर, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, मेरा ये सवाल था कि हमारे लिए फिर बुक्स में हम लोग क्या सिर्फ आंसर ही लिखेंगे? अगर PDF आप शेयर करते हो बुक्स जी की, तो फिर हम लोग आंसर ही लिखेंगे उसके, कि या उनके क्वेश्चन भी लिखेंगे? फिर तो बहुत सारा काम हो जाएगा हमारे लिए ना। आप पता क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जी ठीक है। अगर आप सवाल भी खुद जी लिखेंगे तो वाकई वो काम तो बहुत लंबा हो जाता है ना। अगर आप हाँ जी। नहीं मंगवा सकते तो आप उसको PDF को प्रिंट करवा लें। जी जी ठीक है। ठीक हो गया जी। चलो जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वाइजा की जी 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 सिस्टर। मैं मिसेस कमर नहीं बात कर रही हूँ। जी 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 मेरा एक क्वेश्चन, जिस तरह से अभी आपने हमें बताया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में बी और मिन जो है ये हरूफ हैं, प्रूफ है जी तो बिल्कुल। मेरे थोड़ी सी आऊज़ में अलिफ जो है वो ताउज़ आउज़ के साथ ही शामिल होता है, हाँ या जी, इसके ये हाँ, एक नहीं ही है? ये एक आ होता है इस्तेफामिया यानी कि सवाल वाला, ये वो नहीं है, ठीक है। जैसे हमने फेल मुदारे में किया था ना, हमने कहा था जी अफ़अलु, ये उसी तरह से है, ठीक है। उसमें हम अच्छा आ अलग नहीं करते ना, आऊज़ में ये इसका जो ये जो अपना है, जैसे अशहदु अल्ला, मैं गवाही देता हूँ, ये जो मैं है ना, मैं ये इस आ में छुपी हुई है, ठीक हो गया। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। वही क्या जी जी, ठीक, दुआओं में बस याद रखा करें आप। अल्लाह ताला हम सब का फहम खोल दे, इंशाल्लाह जी, हम इस बात समझ आ जाए। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और उसके लिए हम कहते हैं ना कि हमने ये जो रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको दुआओं में शामिल रखना है, रोजाना की दुआओं में शामिल रखिए। अच्छा जी, अब ये हमारा है ग्रामर पार्ट। अब इसमें क्या करना है, हमने देखा है कि कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज हैं। अब उसमें से हम उसको इस तरह से अलग अलग करेंगे, कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, अस्मा होंगे, अफ़आल होंगे, हुरूफ होंगे, और ये जो एक वर्ड है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये इस्म हो सकता है, ये फ़ेल हो सकता है, ये हर्फ हो सकता है। इस तरह से जो हमारे अल्फाज हैं वो पूरे हो जाते हैं। कितने? 9, औसतन 9 अल्फाज, ठीक है। 3 ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर एक आयत मुबारका हम इस तरह से अपने सामने लेके आए, एक लाइन में जितने अल्फाज लिखे हुए, आयत तो बाज़ वक़्त काफ़ी लंबी भी हो जाती है। एक जो लाइन में कितने, उसमें 3 ज़्यादातर अस्मा होते हैं, 3 अफ़आल,
2 हरूफ और अक्सर ऐसे हो जाता है कि जो एक पीछे बच गया वो इसम फेल हर्फ, उसमें से कुछ भी हो सकता है। आऊज़ु बिल्लाह कोई देख ले, हमने उसमें देख लिया कि उसमें 3 हमारे पास अस्मा थे, 2 हमारे पास क्या आ गए थे हरूफ, और 1 हमारे पास फेल था। तो ये इस तरह से तरतीब बदलती रहती है, कभी हरूफ ज्यादा हो जाएंगे, कभी अस्मा ज्यादा हो जाएंगे, कभी अफ़आल। तो इस तरह से ये मुकम्मल होता जाएगा हमारा 9 अल्फाज का सिलसिला। अच्छा जी, हमारा QC1 का क्वेश्चन है, जरा मुझे क्विकली आंसर कीजिएगा। अल्फाज की कितनी अक़साम है, हमने क्या पढ़ा था? ये जब मैं आपको तो आप लोग सब अनम्यूट कर दें। 3 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि अस्मा कौन सी है? हमने देखा था शुरू में अल, आखिर में तनवीन, वाव, नून, या, नून और अलिफ था। इनको हम कहते हैं ये अस्मा है, ये पहचान हमें होती है। ये सिंपल सी पहचान, आसान पहचान। जहां हमें नजर है, अब आप देखिए हुदन, इसमें क्या है? हुदन में 2 ज़बर है, हमें पता चल गया कि ये इस्म है। इसी तरह से हमने कहा था रब, रब क्या है? अल्लाह ताला का नाम है, नामों का हमें अंदाजा है, उसके ऊपर अल तनवीन ना भी हो, हमें पता है कि रब या जैसे अल्लाह है, मोहम्मद है, ये अस्मा है। हमने कहा था अस्माए इशारा, वो कौन से थे? हाजा, हाउलाई, इसी तरह से जालिका, उलाइका। जालिका, हमने क्या तिलका। कहा था कि हुआ, हुम, ये तमाम के तमाम अस्मा हैं, यानी कि सारी ज़मीरें, सारे इशारे, और इसी तरह से अल वाले अल्फाज, तन्वीन वाले, वाव नून वाले कौन से हैं? जैसे मुस्लिमूना, या नून वाले मुस्लिमीना, और अलिफ ता वाले वो कौन से जो हमने मुअन्नस बनाई थी, जैसे मुमिना से मुमिनात। ठीक हो गया? अब ये जो गोलता वाले है ना, इसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है कि कहीं-कहीं गोलता हमें नज़र आ जाती है, लेकिन ये कि वो मुअन्नस नहीं होते, जैसे मलाइका, जैसे खलीफा, जैसे लड़कों के नाम होते हैं हुज़ैफा, तलहा। तो ये जो गोलता है, इसको हम इस्म की मतलब इस तरह से निशानी नहीं लेते कि उसमें बाज़ दफ़ा थोड़ा-सा ये भी हो जाता है कि कुछ चीज़ों के भी नाम आ जाते हैं। तो ये कि उसको हम इस तरह से यहाँ पर नहीं लिखते। अफ़आल कौन-कौन से हैं? अफ़आल को हम इस तरह से देखेंगे कि जैसे हमने, अच्छा जी, फ़ेल जो होता है ना, उसमें ज़माना पाया जाता है, और जो अस्मा होते हैं अस्मा, उसमें क्या होता है? उसमें इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और फ़िअलुन, इसको हम कहते हैं मस्दर। ठीक हो गया जी? इसे हमने जब टेबल्स बनाए थे उसमें सीखा था। अब यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है, मुफ़्लिहूना, हुदन नज़र आ रहा है, कफ़रू नज़र आ रहा है, अंज़रता, इनको क्यों हाइलाइट किया गया? इनके जो नीचे इनके ब्लू सी पट्टी दी गई है ना, ये आप लोग को देखने में इसको अंदाज़ा हो रहा है? ये इस्म भी है और अफ़ाल भी है। ये देखिए, ये हमने जो पूरे टेबल बनाने हैं ना, ये वहां से निकलेंगे, फिर हमें समझ भी आ जाएगी कि ये क्या है, कि ये है तो अफ़आल में से, लेकिन ये इस्म फ़ाइल, इस्म, यानी कि ये अस्मा होंगे। ठीक हो गया? हम ये नहीं कहेंगे ये कि इस्म भी हैं और ये फ़ेल भी हैं। ये हमारे जो टेबल्स में से आएँगे, हम वहाँ से इंशाल्लाह इनको सीख लेंगे। और ये बड़ा प्यारा सिलसिला है, ये जो टेबल्स वाला, गिरदानों वाला, इंशाल्लाह हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख लेंगे। और अब ये जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हुरूफ हैं, जैसे अला, मिन, अला, इसी तरह से लम, दोबारा से अला, 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 इसी तरह से व और ला, व, मिन, ठीक है? व, मा, ये इल्ला, ये तमाम के तमाम हुरूफ हैं। हुरूफ के बारे में हमने क्या सीखा था कि कुरान मजीद में आने वाले तमाम अल्फाज या तो अस्मा होंगे या अफ़आल होंगे, और जो अस्मा या अफ़आल नहीं होंगे वो हुरूफ कहलाएंगे। ये जी आप इस तरह से अपने कुरान मजीद में देखिएगा कि जब हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, हुरूफ, अस्मा और अफ़आल, ये बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह हमें समझ आ जाएंगे। हुरूफ के बारे में क्या सीखते हैं हम कि हुरूफ बदलते नहीं हैं, यानी कि जो ला है इसने ला ही रहना है, मा ने मा ही रहना है। ठीक हो गया? इसने बदलना नहीं है। अस्मा में हमने क्या सीखना है? इनकी हमने जमा सीखनी है, जैसे कलब, कुलुब, और इसी तरह से हम मुज़क्कर मुअन्नस भी सीखेंगे। अब ये जो QC2 में हमारा असली चैलेंज है, ये क्या है? ये अफ़आल है, क्योंकि अफ़आल में माज़ी, मुदारे, अमर वगैरह मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं।
अब पहले तो हम सीख रहे थे आसान आसान सादा, अब हम थोड़ा सा इसको, जैसे हम बड़े हुए हैं इसी तरह से हमारी क्लास भी बड़ी हो गई और थोड़ा सा हमारा काम ज्यादा हो गया, मुश्किल नहीं हुआ, मुश्किल नहीं कहेंगे इसको, ठीक हो गया जी। फेल की एग्जाम हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से पिछले कोर्स में सीखा हुआ है कि एग्जाम में क्या क्या होता है, इसीलिए हम आगे इसको बढ़ते हुए देख लेंगे कि नमाज के कोर्स में हमने 3 हरूफ वाले अफ़ाल सीखे थे। जैसे हमने सीखा था फतहा, नसरा, दरबा, स्वामिया, और हमने कहा था ये तमाम के तमाम अबवाब हैं कि एक फा बाब, नून बाब, बौद बाब और सीन बाब, ये अबवाब हैं, ये फेल के नमूने हैं, इनमें से अल्फाज गुजरते हैं और हम उसको फिर तय करते हैं कि ये किस पैटर्न पर आ रहे हैं। अब हमने क्या सीखना है, अब हमने सीखना है कमजोर हर्फ। कमजोर हर्फ कौन कौन से हैं, वाउ, या और अलिफ, हमजा नहीं है, ठीक है, ये अलिफ है। क्यों, इसलिए कि कमजोर या बीमार आदमी तकलीफ की हालत में ऐसी आवाजें निकालता है, ऊ या ई, इस तरह से इस तरह की आवाजें निकालता है ना, तो इन अल्फाज को भी ऐसे कह दिएगा कि ये कमजोर है, ये बीमार है, ये इंजर्ड है, या ये स्पेशल अल्फाज हैं। अब देखिए कि इंसान, देखिए कोई अगर उसका हाथ कमजोर है या उसकी टांग कमजोर है तो मोस्टली उन्हें क्या कहते हैं, ये स्पेशल है या ये माजूर है, या इनको कह देते हैं ये ज़ईफ है, ये बीमार है। तो ये हमारे ये जो 3 अल्फाज हैं, 3 हुरूफ हैं, वाओ, या और अलिफ, ये हमारे कमजोर हुरूफ हैं। अब आगे हमने क्या सीखना कि ये जो कमजोर हुरूफ है किसी फेल में भी आ सकते हैं, जैसे अब देखिए वहाबा, वादा, क़ाला, ठीक हो गया। अब वहाबा में वा आ गया, वादा में भी वाव आ गया, इसी तरह से क़ाला में अलिफ नजर आ रहा है, तो इनको हम कहेंगे कि ये कमजोर अफ़ाल हैं। जिस तरह अगर किसी का हाथ कमजोर हो तो वो शख्स कमजोर हो जाता है, इसी तरह से फेल के 3 में से अगर कोई एक हर्फ कमजोर है तो वो फेल भी कमजोर होगा। 3 हर्फ कौन से हैं, जैसे हमने कहा था फा, आइन, लाम, फ़अला, हमने कहा था फा, ता, हा, फ़तहा। अब 3 हर्फ है हमारे पास, वा, हा और बा। अब इसमें से ये जो वा है ये कमजोर है, हा और बा ये दोनों ये सेहतमंद हरूफ हैं, ठीक है। कुछ हमारे अफ़ाल होंगे सेहतमंद और कुछ हैं हमारे पास कमजोर। तो अब हमने QC2 में इन कमजोर अफ़ाल को बनाना है, सीखना है, लेकिन जो हमारे मेन बाब है, आप समझ लें एक इमारत है या एक मस्जिद को ज़हन में लाएं, उसके 4 दरवाजे हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है फतहा, नसरा, दरबा, सामिया। अब ये जो हमारे अल्फाज है दाखिल तो उन दरवाजों से होंगे, आगे फिर ये मजीद फैलते जाएंगे, ठीक हो गया जी। कुछ चले जाएंगे फतहा पे, कुछ चले जाएंगे नसरा में, इसी तरह से कुछ दौराबा पे चले जाएंगे और कुछ सामिया पे चले जाएंगे। और ये हम इंशाअल्लाह जो पहला पहला टेबल सीखेंगे, ये बात हम शुरू से सीखना शुरू कर देंगे ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो। एक हमारा मेन बाब होगा और एक हमारा रेफरेंस बाब होगा, जिसको हम कोड भी कहेंगे। तो इस तरह से इंशाअल्लाह हम ये जो ग्रामर की तरतीब बनाएंगे, 3 हरूफ वाले अफ़ाल को हम कहेंगे सेहतमंद। अच्छा जी, अब आपके सामने ये 4 लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से सही या सेहतमंद अफ़ाल कौन से हैं? फतहा, नसरा। वादा, नसरा। ये थोड़ी थोड़ी पहचान करते करते इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक हो गया जी। और अब ये जो हमारे पास कमजोर होंगे इनमें बहुत सारे होंगे, 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा, ठीक हो गया। हमने एक पोइम सीखी थी, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, तो इसलिए सुन लो, यानी कि फतहा, नसरा, दरबा, सामिया। इसी तरह से एक फ्रेज हमने यहाँ भी सीखनी है। अच्छा जी, अब आप इसमें से मुझे देख के बताइएगा जल्दी से कि कमजोर अफ़ाल कौन कौन से आपको लग रहे हैं। वहबा, काना। और काना, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी जीनियस क्लास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कुरान मजीद में तकरीबन 9000 अगर सेहतमंद अफ़ाल आए हैं तो तकरीबन 9000 ही कमजोर अफ़ाल आए हैं। तो अब ये सीखना और भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे हमने सेहतमंद सीखे थे वो आसान है, बनाना आसान है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, ठीक है। आपने कहीं भी मुश्किल का लफ्ज नहीं लाना, थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा करनी, इंशाअल्लाह हम इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे।
हर लाइन में अगर सेहतमंद एक मरतबा फेल नजर आता है तो एक बार हमें एक कहीं ना कहीं कमजोर फेल भी नजर आता जाएगा। इसी तरह से हम इंशाल्लाह QC3 में पहुंचेंगे तो हम एक और तरह के सीखेंगे, वो होंगे मजीद भी। और ये बहुत ही बेहतरीन जो हम सीखते हैं टेबल्स, उनमें से ये मुझे ज़ाती तौर पर QC3 के ये टेबल्स बहुत पसंद है। इंशाल्लाह इसको भी जब हम सीखेंगे और इंशाल्लाह आप मेरे साथ ही सीखेंगे, तो ये कि इख्तलाफा इस्तगफरा होते ही सारा जो माजी के सीखा दिया जाता है, इंशाल्लाह इनको हम अगले कोर्सेज में सीखते जाएंगे। ये अभी हम छोड़ते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ये हमने सीखना है। ये जो है यकसा हरूफ वाले, ये इंशाल्लाह हमने QC2 में ही सीख लेना, इसको अभी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब कमजोर अफ़ाल कैसे होते हैं, ये जो इनमें क्या होता है, वहाबा और वादा। देखिए इसके शुरू में आ गया कमजोर, वहाबा वादा, और हमने देखा क़ाला ज़ादा, यानी कि इसमें क्या है, अलिफ अलिफ देखिएगा, क़ाला में ज़ादा में, इसमें दरमियान में कमजोर हर्फ। इसी तरह से आखिर में भी आ सकता है, जैसे दा और हदा। ये जो रेड कोडेड है, ये हाईलाइट किए गए ना रेड कलर से, ये हमारे कमजोर कौन कौन से हैं, वाउ अलिफ और हमजा, सॉरी वाउ अलिफ और दोबारा एक जा, ठीक है। और इसको हमने हमजा नहीं कहना, बताते बताते खुद आपको कह रही, जिस अलिफ के ऊपर किसी भी तरह की कोई अलामत ना हो उसे अलिफ कहेंगे, और अगर एक जज़म भी लग जाए तो वो हमजा बन जाता है। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमने सीखा था फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ। ये हमारी 4 स्टाइल की नमाज के कोर्स में हमने पोएम एक सीखी थी। अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो। अब हम कैसे सीखेंगे, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, औला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। ठीक है, अब ये जो ऊपर छोटा सा फ्रेज है, इसको हमने याद रखना है, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। अब जब हम ये पढ़ेंगे ना, हम इसको इसी तरह से पढ़ा करेंगे, हर बार इस पर रिपीट किया करेंगे। ये आप इंशाअल्लाह, ये जो हमारा QC1 था, ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने थोड़े बहुत उसमें वॉइस नोट बना के भेजे थे, लेकिन अब QC2 में इंशाअल्लाह आप लोगों का जैसे ही ग्रुप ओपन किया जाए, आप लोगों ने एक तो 4 इशारे और ये जो हमारी फ्रेज है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, इसको हमने अच्छी तरह से याद करके ग्रुप में सुनाना है। इंशाल्लाह सुनाएंगे ना आप लोग? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ये 3 जुमले हैं, इंशाल्लाह। 1-2 जुमले हम इसमें और जोड़ लेंगे। 3 जुमले हैं, इनकी मदद से हम कमजोर अफ़ाल के स्टाइल को याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, और आप लोगों ने टीचर भी बनना। अभी इसलिए थोड़ा सा हमने पढ़ा या सीखा, इसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे, ताकि अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, और हम किस तरह से एक दूसरे से भी सीखेंगे। आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगी, और हम अपने साथियों से भी सीखेंगे। और हमने अगली जो एक बेहतरीन जो कोशिश करनी है, जो नियत की है, वो ये कि हमने भी टीचर बनना। आप सब नियत कीजिए कि इंशाल्लाह हम कुरान के टीचर बनेंगे, ताकि हदीस के दोनों पहलुओं पर अमल किया जा सके। जो है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। टीचर बनने के लिए इंशाल्लाह ट्रेनिंग, वो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे ट्रेनिंग्स का आता जाएगा शेड्यूल या कोई अनाउंसमेंट होगी, तो इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में डालते रहेंगे। चलिए जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अब हम ऐसा करेंगे कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनके कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए।